بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود، لیکچرر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ ایسے کینڈیڈیٹس جو کہ ٹیسٹ میں کوالیفائی کر چکے ہیں، اب ان کے لیے اگلا مرحلہ انٹرویو کا ہے۔ تو انٹرویو میں پینلسٹ کن کن چیزوں کو میئر کرتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ کویسچنز ہیں اسٹوڈنٹ کی طرف سے کہ ہمیں اپنا انٹروڈکشن کیسے کروائیں، انٹروڈکشن اردو میں ہونا چاہیے یا انگلش میں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کویسچن ہیں کہ کویسچن جو بچے جنہوں نے اردو میڈیم میں پڑھا ہوا ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اردو میں جواب دیں یا انگلش میں جواب دیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ اس میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے اور آپ امتحان میں اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب ہو سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پینلسٹ کیا کچھ میئر کرتے ہیں۔ اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا انٹروڈکشن ہے جو ہے اس میں آپ کی اچیومنٹس، آپ کی اسٹرینتھس، آپ کے سرٹیفکیٹس، آپ کے میڈلس، یعنی وہ چیزیں آپ نے بیان کرنی ہیں جو آپ کے ڈاکومنٹ شاید نہ اس چیز کو شو کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ میں یا میٹرک میں یا گریجویشن میں کوئی پوزیشن لی ہے بورڈ میں، تو آپ کی ڈگری کے اوپر تو نہیں لکھا ہوگا، تو اس لیے آپ اس کو بتائیں۔ اس کے علاوہ اسپورٹس میں آپ نے کوئی کسی ٹورنامنٹ میں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی سطح پہ، نیشنل لیول پر کوئی چیز اگر آپ نے کھیلی ہے، کوئی گیم اور ون کی ہے، اس میں آپ کا کوئی میڈل ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اس کو بھی شو کریں۔ بہتر تو یہی ہے کیونکہ جو لیکچر فزیکل ایجوکیشن کی ڈگری جس کی جو ریکوائرڈ ہے وہ ہے ایم اے ایم ایس سی فزیکل ایجوکیشن اور بی ایس فزیکل ایجوکیشن، اور اس کا میڈیم تو انگلش ہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن بھی انگلش میں کروائیں۔ لیکن یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ سے وہ کہیں کہ اپنا تعارف کروائیں تو آپ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف تو پھر یہ ہے کہ آپ انگلش میں ہی اپنا تعارف کروائیں۔ اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس لینگویج میں کویسچن پوچھا جائے اسی لینگویج میں جواب دیں۔ اگر آپ سے انگلش میں پوچھتے ہیں واٹ از فزیکل ایجوکیشن، تو پھر آپ کو انگلش میں ہی بتانا چاہیے فزیکل ایجوکیشن از پارٹ آف جنرل ایجوکیشن، اٹ ڈیلز ود بگ مسلس اینڈ اٹس ریلیٹڈ رسپانسز۔ تو اسی طرح اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جسمانی تعلیم کیا ہے تو پھر آپ اردو میں بتا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ آپ نے اگر پڑھا بھی انگلش میں ہے، اگر نہیں بھی پڑھا تو یہ آپ نے وہاں پہ یہ نہیں شو کرنا کہ مجھے انگلش نہیں آتی، تو ایک بیڈ امپیکٹ ہے آپ کے لیے۔ انٹروڈکشن بھی دو طرح سے آپ تیار کریں۔ ایک آپ کا بریف انٹروڈکشن ہو کہ اگر وہ آپ کو 30 سیکنڈ سے 1 منٹ کا ٹائم دیں تو اس میں بھی آپ کروا سکیں، اور ایک ایسا کہ اس میں وہ کہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو اس میں آپ نے بولتے جانا ہے جب تک کوئی آپ کو انٹرپٹ نہ کر دے، کویسچن آپ سے کر دے، تب تک آپ نے چلتے جانا ہے۔ آگیا جی، کویسچن کیا پوچھتے ہیں اور پینلسٹ کیا جج کرتے ہیں۔ جب آپ انٹرویو روم میں داخل ہوں گے تو کن کن چیزوں کو وہ جج کریں گے۔ نمبر 1 پہ آپ جیسے ہی آپ انٹر ہوں گے، کیونکہ آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ ان کے سامنے ہوگا، وہ آپ کے جانے سے پہلے آپ وہاں پہنچ چکا ہوگا، تو وہ دیکھ چکے ہوں گے کہ میٹرک میں آپ کے کتنے مارکس ہیں، کس سبجیکٹ میں اچھے ہیں، کس میں کم ہیں، اور انٹرمیڈیٹ میں کیا سچویشن ہے، ماسٹر میں کیا سچویشن ہے۔ وہ تمام کی تمام ایک قسم کا آپ کے جانے سے پہلے اور آپ کے جانے کے بعد ایک انالیسس کرتے ہیں۔ پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو انالیسس انہوں نے کیا ہے کہ وہ وہی ہے یا آپ ان کے انالیسس کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے میٹرک میں کسی وجہ سے آپ بیمار تھے، کوئی اور وجہ تھی، گھریلو حالات تھے، یا آپ اتنا سنسیئر نہیں تھے پڑھائی سے، تو آپ نے کم نمبر لیے، اور اس کے بعد آپ کو احساس ہوا گریجویشن میں جا کر اور ماسٹر میں آپ نے خوب محنت کی، آپ کی ظاہر سی بات ہے ایج کا بھی ڈفرینس ہو گیا، تو آپ ایک میچور اور بہت محنتی اسٹوڈنٹ ہو گئے،
तो मैट्रिक में तो उनका आपके बारे में यही कॉन्सेप्ट होगा कि ये इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था और आगे भी यही शायद सिचुएशन होगी। तो जब आपसे सवाल जवाब होंगे और आप अपनी कमिटमेंट्स अपने इल्म के ज़रिए से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए से उनको इस चीज़ पर राज़ी कर सकेंगे कि आप बहुत ही कमिटेड हैं और बहुत ही मेहनती तालिब इल्म हैं, तो जो उन्होंने राय कायम की थी वो उसको बदल देंगे। तो मैं यही बताना या यही चाह रहा हूँ कि बाकी जो कुछ आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो 16 साल का है, इसके बाद आपका रिटन है, वो सब हो चुका है। अब आपकी सिर्फ़ और सिर्फ दारोमदार जो सिलेक्शन का दारोमदार है वो इंटरव्यू के ऊपर है। तो इसलिए आपने इसको फोकस करना है कि तमाम लोग जो पास हुए हैं तो सब ने पूरी ट्राई करनी है। ये नहीं ज़हन में रखना कि हम कम लोग हैं, कम कंपटीशन होगा। कंपटीशन तो कम होगा लेकिन एटलीस्ट आपको पास तो करना है। 50 नंबर आप तभी लेंगे जब आप कुछ परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग कम हैं और आप परफॉर्म नहीं भी करेंगे तो आपको रख लेंगे। अच्छा जी, नंबर 2 पे है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो इंटरव्यू में जज करते हैं। पहले नंबर पे पर्सनालिटी है, दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन स्किल है। पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें, मिसाल के तौर पर आपका ड्रेसिंग है और आपने उनको कितनी की अहमियत दी है उन लोगों को। कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि वो रेड जो टाई लगा के चले जाते हैं जिसका बिल्कुल कोई मैच नहीं होता, या वो कलर्ड शूज़ पहन के चले जाते हैं पैंट शर्ट के साथ। आप इन चीज़ों को, इस डेकोरम का ख्याल रखें। अगर आपने 3 पीस पहनना है तो टाई होनी चाहिए और पिन अप होनी चाहिए पैंट कोट शर्ट के साथ, और ब्लैक शूज़ हो बेहतर है। और इसके साथ साथ आपने, अगर आप शेव करते हैं तो शेव ताज़ा बनी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप नहीं करते, मतलब मिसाल के तौर पर अगर मेल कैंडिडेट है, दाढ़ी रखी हुई है, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से कटिंग भी करवानी है। तो यानी इसका मकसद ये है कि आपने उन लोगों को क्या वर्थ दी है, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आपको जज करने के लिए आए हैं, उनको ये अहमियत दी है आपने उन लोगों को, या वैसे ही जैसे आप रूटीन में कैजुअल ड्रेस में वहाँ चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शलवार कमीज़ के साथ वेस्ट कोट का इस्तेमाल किया जाए, वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको कौन सा कलर जो है वो सूट करता है। लेकिन जो कुछ नामुनासिब समझे जाते हैं, जैसे ब्लैक पैंट कोट है, ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। बुरा कोई नहीं है, लेकिन एक कुछ चीज़ें हैं जिनको वो चेक करते हैं, मेजर करते हैं, तो इसलिए हमने अपनी सिलेक्शन करवानी है, तो इस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है। तो कम्युनिकेशन स्किल में, क्योंकि वहाँ आप जो जितने भी लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, जिस तरह ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो हज़ारों में से ये 98 लोग हैं। इट मीन्स ये काबिल ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनको जॉब दी जाए और ये नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके ऊपर जो आएगा उसको वो रखेंगे, उससे कम वाले को नहीं रखेंगे। तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाती है कि आप किस तरह बात करते हैं, और आप अगर मैसेज देना हो तो आप कैसे आगे कन्वे कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो टीचिंग स्किल का एक अहम हिस्सा है कि आपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकते, बच्चों को कायल नहीं कर सकते, तो फिर आप पढ़ा नहीं सकते। क्योंकि पढ़ाना एक आम काम नहीं है। शायद आपकी नज़र में एक आम काम हो, लेकिन ये एक नेशन को बिल्डअप करना है, अपने एक नेशन को बनाना है। तो उसमें नेशन को बनाने में जितना किरदार टीचर का है, इससे ज़्यादा किसी और का किरदार नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये इस बात पर खासी तवज्जो दी जाती है कि जो टीचर है वो पढ़ा भी सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। तो इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, और साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी देखा जाता है कि आप कितने के पुरअतमाद हैं। अगर आप बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। शुरू में कुछ स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट इंटरव्यू होगा, तो शुरू में थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को थोड़ा सा परेशानी होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बात ज़हन में रखें, 2 ही चीज़ें हैं, एक सिलेक्शन है, एक रिजेक्शन है। तो आपने इंटरव्यू में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राज़िक अल्लाह ताला की ज़ात है, वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। तो अगर आपके नसीब में हुआ तो जो सवाल उन्होंने पूछे हैं वो आपको आते होंगे तो आप जवाब दे देंगे, अगर नहीं आते होंगे तो ज़रूरी सी बात है आप सॉरी कर लेंगे। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप सारे के सारे सवालों के जवाब दें कि आपको रखा जाए, ऐसा भी नहीं है। बस उन्होंने आपको चेक करना है, वो अपने ज़ाविये से, हर शख्स अपने अपने हिसाब किताब से, चेयरमैन जो है वो अपनी नुक्ता नज़र से देखेगा, जो सब्जेक्ट के लोग हैं वो आपको
अपनी नुक्ता नज़र से देखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बेसिक चीज़ें पूछेंगे। अगर आपको वो चीज़ें आप बेहतर तरीके से बता देते हैं तो फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, नेक्स्ट लेवल के हो सकते हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आप जो किस तरह आप बात करते हैं, उसके साथ साथ आप कोई प्रॉब्लम आपको हो जाता है तो आप उसको फेस कैसे करते हैं, उस पर काबू कैसे पाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें वहाँ इंटरव्यू में देखी जाती हैं। इस तरह के सवालात किए जाते हैं और आपका पेशेंस भी देखा जाता है। और यहाँ एक बात और भी मैं बताता चलूँ, शायद इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू में बताई थी कि आपने किसी मजहबी जमात के हवाले से और किसी सियासी जमात के हवाले से अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आपने बड़ा अब कैसे कह सकते हैं कि नब्बे तुले अंदाज में जवाब देना, ना कि आपने वहाँ पे तकरीर करना शुरू कर देनी है कि क्योंकि नौजवान हैं, यंग हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इनका रुझान पीटीआई की तरफ ज़्यादा है। तो जो टीचर है जो टीचर है उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में ये है कि किसी सरकारी मुलाजिम का भी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन टीचर का खसूसी तौर पर, क्योंकि हमारा एक समझ लें कि हमारा काम तबलीग का है, हमने बच्चों को पढ़ाना है, बताना है उनको पढ़ाई के हवाले से और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हमने सारी चीज़ें उनको बतानी होती हैं। तो इसलिए हमें इन मजहबी और सियासी जो चीज़ें हैं इनसे परहेज़ करना ही बेहतर है। और उसके साथ साथ वो आप देखेंगे आपकी कमिटमेंट्स कितनी हैं, आप कितने कमिटेड हैं अपने। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि अगर आपको ये जवाब ना दें तो फिर आप क्या करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट थक हार के बैठते थे, बस जी हम प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते रहेंगे। तो वहाँ पे आपने या बेहतर आंसर देना है कि मैं इंशाल्लाह मैं फिर ट्राई करूँगा और मैं अपने मकसद को या गोल को अचीव करूँगा। तो ये भी आपके लिए पॉजिटिव सेंस है। और इंटरव्यू के दौरान भी अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो जिस ज़बान में सवाल किया जाए, उर्दू और इंग्लिश दो ही मीडियम इस्तेमाल होते हैं, उसी लैंग्वेज में ही आप जवाब दें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगले बंदे को सही समझ आ सके। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना आपके पास इल्म ज़्यादा होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। और बिल्कुल कुछ लोग हैं जिन लोगों के सवालात हैं कि हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है तो हमारे लिए मसले मसाइल हैं, तो बिल्कुल उन्होंने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर अजर देगी। उर्दू इंग्लिश ठीक है, एक लैंग्वेज का फ़र्क है, लेकिन इल्म तो है ना आपके पास। आप कोशिश कर लें, जो बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं सब्जेक्ट के हवाले से, जो आपका गेम है उस हवाले से, उनको इंग्लिश में भी तैयार कर लें साथ साथ, जो आपके लिए मावन साबित होगा। तो इस इंटरव्यू के हवाले से या और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके प्रॉपर जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम।